Good morning, everyone. Morning, sir. So, did you guys tested on MailChimp or didn't get a chance to do that? Because I received a mail from, I think one mail I received from Salva. I think I received one mail. Yes. How about others? Okay. So Salva, can you please check? I'm like you sent it only to me or you sent it to many others so that you can track record this analytics of mail what you sent, number of people who have opened, number of which email ID have received your email and all. Assalamualaikum, sir. Yes, sir. I shared to approx 8 people, I believe. Okay. So out of which only 2 people have seen, including you and Seth. Okay. I used our group contacts only so that Okay. each of us can check out. Mhm. And I followed the same steps, opened, clicked, and I'm seeing the analytics and everything as well. Okay. Fair enough. So anyone else और किसी ने try किया? शहरयार, सैफ, असलम, फातिम, अदीबा. Didn't get a chance to do, sir. Okay. Sorry, we'll do it. Not a problem. Not a problem. Okay. So Assalamualaikum, sir. one salam. Yes, sir. Yes, sir. I have done. Okay. You can check your spam folder Yeah. because I have also got in my spam folder only. Let me check it. Hold on. Aslam, right? Yes, sir. Yeah. Report not as spam. It came to my inbox now. Yeah. How many guys you sent, Aslam? Sir, 4. 4. Out of that, Yes, sir. anyone has opened it? Just 2. Just 2. Okay. Yes, sir. So I also opened right now, so you can cross check it in case, Okay, sir. in case it is I'll shown. check it. Yeah. So anyone else tried? Assalamualaikum. Walaikum salam. Did you receive my spam? Come again. Your sound was echoing. I think you received my email spam. I think I sent info. Okay, you sent that info. Okay. Yes, you sent the screenshot that you have added the domain as well successfully, right? Yeah. So after that, did you send email test mail or? Yeah. Okay. I mean, in Gmail, I've checked this coming in spam folder, but in the domain email, it came in the inbox. Okay. So why don't you try? I'm like, if it has not came because of that domain or something. So from at sender, you can put any Gmail account and then send it to. Okay. Yeah, Okay. yes, Saf, right? Yeah. Yes, it best Umrah package received it. Yeah, Saf. So you received in spam folder. Yeah, I received in spam folder. So what we have to do? Yeah.
I'm like probably we may have to try a little bit on modifying the title tag, because sometimes exact promo thing sometimes appears as a promotional thing and then it goes to spam as well. So maybe little bit of variation in Salva's email, I received it in the main box. Okay. And okay, so that is fine. Okay, now so you guys try it and then try to create little variation in terms of title and see which goes straight away to inbox. So you can keep trying, and then that will help. And sometimes this content also plays a vital role in terms of deciding which kind of content it is, right? So we may try a little bit of variations. And then Saf, you sent an email where it's a plain written content, so you can try. I'm like package includes. I'll just share it in the screen, so that will be visible to all. Right, so this is the email that I received. Okay, yeah, Best Umrah package 2022 from Hyderabad. Star Beyond Travels Best Umrah package. So this is Hajj and Umrah package includes. So यहाँ पे पैकेज इंक्लूड जो है ना, इसके साथ अगर आप बुलेट पॉइंट्स डाल देते तो मैं ट्राई किया था सर बुलेट पॉइंट के साथ, लेकिन वो स्पेसिंग बहुत ज्यादा हो जा रही थी। ओके, नहीं तो स्पेसिंग अगर ज्यादा हो जा रही थी तो आप सेटिंग्स में जब जाएंगे वहीं पे एक सेटिंग्स का भी ऑप्शन आता है जहाँ पे आपको स्पेसिंग चेंज करने का भी ऑप्शन आ जाता है, तो ट्राई करिएगा, ठीक है। दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। ओके, और यहाँ पे ये सारी चीजें आ गई, टर्म्स एंड कंडीशन आ गए, और नीचे आपका कोई सोशल आइकॉन या लिंकेज नहीं है, तो ये आप थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप डाल दिए होते यहाँ पे, अच्छा है कुछ नहीं, दिस इज नथिंग विच इज कमिंग। ओके, यहाँ पे कुछ आइकॉन है बट इट इज वेंट इन, लिंक किया था मैं सोशल मीडिया। जी, बट ये ट्रांसपेरेंट हो गया है, पता नहीं किस वजह से, तो वो थोड़ा सा चेक कर ले। और लिंक के साथ अगर आप कनेक्ट कर देते हैं, एक काम और कर सकते हैं कि ये जो इमेज है, इमेज को भी आप हाइपरलिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि इमेज को मैं क्लिक करूंगा तो सिर्फ इमेज खुलेगा। ओके, ये शटर स्टॉक का आपका आ रहा है, तो इस इमेज को भी आप हाइपरलिंक कर सकते हैं, विच विल टेक यू टू योर वेबसाइट। या फिर जो पैकेज उमरा है, पैकेज इंक्लूड्स है, यहाँ पे नो मोर करके एक आइकॉन, एक कंटेंट डाल के उसके बाद हाइपरलिंक करके आप अपनी वेबसाइट को ले लें, तो दैट विल बी गुड हेल्प फॉर यू। जो भी जिसके पास भी ईमेल जा रहा है उसको हम अपने वेबसाइट की तरफ फिर हम पुल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो अब आप लोगों को पता चल गया है कि किस तरह से इसको करना है, तो और भी थोड़ा सा टेम्पलेट दूसरा चूज करके कोई और थोड़ा सा ट्राई करके जिसके अंदर और बेटर ऑप्शंस आ सकते हैं, उस टाइप से आप लोग करके ये कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फुटर के अंदर भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐड करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है, सो डोंट मिस एनी अपॉर्चुनिटी टू ऐड। ये जैसे इमेज है, अगर हम इसको क्लिक करें तो सीधा सीधा ये इमेज ही खुलता है। तो जैसे मैंने अभी सैफ को बताया कि आप इसको हाइपरलिंक कर सकते हैं अपने वेबसाइट से, दैट विल बी बेटर। ओके, और मोबाइल पे कैसा खुल रहा है वो भी आप देख लीजिएगा, सो दैट सेंटर लाइन में या फिर किसी वर्ड को आपको हाईलाइट करना है, फॉर एग्जांपल रमज़ान ऑफर है, रमज़ान को अगर हाईलाइट करना है तो आप बोल्ड कर सकते हैं या जैसे भी कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह के ऑप्शंस अगर आप ट्राई कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा बेहतर उसका रिस्पॉन्स आपको थोड़ा बेहतर मिल जाएगा। ओके, Yes, sir. I had a quick question in the sense that my mail was specially like in the promotion section. उसमें ही आया सबको, so it's like irrespective क्या decide हो क्या आता है कि किसका किधर कौन से पैनल में, rather than normal inbox. राइट, देखिए प्रमोशन में क्या होता है, जैसे आप 20% ऑफ लिख रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज लिख रहे हैं तो वो ज्यादातर प्रमोशन में ही जाता है, ठीक है।
तो हमको क्या करना होगा, हमको अपने टाइटल के साथ प्ले करना होगा। जो आप सब्जेक्ट लाइन दे रहे हैं वो आप नॉर्मल दे सकते हैं। जो प्री टेक्स्ट आता है सब्जेक्ट लाइन के बाद, जो प्री टेक्स्ट आता है, जो प्रीव्यू टेक्स्ट आता है, उसके अंदर अगर आप अवेल 20% ऑफ करके अगर आप करेंगे तो देयर इज अ चांस के आपका सब्जेक्ट लाइन की वजह से आपका इनबॉक्स में आएगा। अब राइट, तो ये इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट मोर और लेस जिस तरह के मेल्स ज्यादातर लोग प्रोमो के फॉर्मेट में भेजते हैं तो गूगल उसको फेच करके वो कैटेगराइज कर लेता है। बट यहीं पे एक प्ले करना पड़ता है कि हम किस तरह के सब्जेक्ट लाइंस को यूज करें। तो आपको थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट लाइन के साथ प्ले करना पड़ेगा और उसके बाद जो है ये आपको मिलना शुरू होगा कि इनबॉक्स की तरफ आपको मूव हो जाएगा। बट अभी जैसे कुछ मेल्स जैसे सैफ के थे या असलम का था कि वो स्पैम फोल्डर में गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमको थोड़ा सा और अपने कंटेंट के लिए मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा कि भाई हमारा स्पैम फोल्डर में ना जाए, ठीक है। तो ये Yes, sir. ये पूरा का पूरा हिट एंड ट्रायल है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हिट एंड ट्रायल ही है कि ये वाला कंटेंट डाले तो ये स्पैम में गया, कोई प्रमोशन में गया, और कोई जो है डायरेक्ट इनबॉक्स में गया। तो थोड़ा सा हम लोगों को हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, तब जाके हम फ्रीज कर पाएंगे। अदरवाइज मेरे साथ भी ये हुआ कि मैक्सिमम जो चीज़ें आ रही थी जो हम मेल चेम्प को यूज़ कर रहे थे, तो हमारे साथ भी ये हुआ कि हमारे मेल्स जो है इनबॉक्स को जा रहे थे। बट अभी रिसेंटली जो गेट 20% ऑफ और लॉन्च डिस्काउंट करके हमने ये किया, which is going directly to either promotion or to the spam folder, that has happened. तो हमने थोड़ा सा कंटेंट और टाइटल को हमने चेंज किया एंड देन इट वेंट इन द इनबॉक्स एज वेल। तो ये थोड़ा सा अपने को मॉडिफाई करने का है और कोई खास इसमें नहीं है। Yes, sir. Thank you. एक टॉपिक है जो कि मैं स्किप कर गया था और मेरे से मिस हो गया था, वो इसीलिए मैंने आप लोगों को जो है विक्स का साइट आप लोगों से मंगवाया था। मैं क्रॉस चेक कर रहा था कि किसकी साइट्स जो है गूगल पे इंडेक्स हो चुकी है। बट मोर और लेस जो मैंने क्रॉस वेरीफाई किया तो शायद जितने भी लिंक्स आए, मैंने जब गूगल में उसको सर्च करने की कोशिश की तो अभी तक इंडेक्स नहीं हुआ है, विच शुड हैव हैपेंड बाय नाउ। बट उसकी एक वजह ये है कि हमारा गूगल साइट वेरिफिकेशन और सर्च कंसोल के अंदर हमने sitemap.xml जो है वो हमने सबमिट नहीं किया था। ओके, तो एक क्विक एक्टिविटी है, ये बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। तो मैं सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ, फिर आप लोगों को मैं बताता हूँ कि किस तरह से हम इसको वर्कआउट कर सकते हैं। और मे बी आप लोगों में से कोई एक जो कि अभी लैपटॉप पे हो वो भी इस चीज़ को देख सकते हैं और वो ट्राई कर सकते हैं, सो दैट ये हम लोगों के लिए एक प्रैक्टिस हो जाता है। तो मैं इस चीज़ को कहेंगे गूगल साइट वेरिफिकेशन एक है, और ये गूगल सर्च कंसोल के अंदर है, जिसके अंदर हम पहले अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करते हैं, फिर उसके बाद हम अपने sitemap.xml को अपलोड करते हैं। वो सक्सेस हो जाता है, फिर उसके कुछ घंटों के बाद या एक दिन या 2 दिन 48 आवर्स के अंदर अंदर वो साइट हमारा गूगल के अंदर इंडेक्स होता है। तो मैं एक डॉक्यूमेंट है, छोटा सा डॉक्यूमेंट है 2 पेज का, मैं उसको शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग उस चीज़ को देख के कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी सबसे पहली चीज़, मेरा डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है ना? Yes, sir. राइट, तो ये है कि गूगल सर्च कंसोल, आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे गूगल सर्च कंसोल, तो एक इंटरफेस निकल के आता है। या search.google.com भी अगर आप ओपन करेंगे, search.google.com या सर्च कंसोल, गूगल सर्च कंसोल, आप गूगल में ही सर्च करेंगे तो आपको एक इंटरफेस आएगा जिसका कि फर्स्ट लेवल आपको सबसे पहले अपने जीमेल अकाउंट के साथ आपको लॉगिन करना पड़ेगा, और उसका फर्स्ट इंटरफेस ये आता है। अगर आप डोमेन के साथ आप वर्क कर रहे हैं, यानी आपका अपना डोमेन है, तो लेफ्ट साइड वाला जहां डोमेन लिखा हुआ है उसके अंदर आपको अपनी वेबसाइट डालना है। अभी जो हम लोग विक्स वाला साइट बनाए हैं या कभी ब्लॉग बनाएंगे या फ्री वेबसाइट बनाते हैं, वो हम राइट साइड वाले में डालेंगे जिसको यूआरएल प्रीफिक्स कह रहे हैं, और उसको हम जब डालने के बाद हम उसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो जब कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो एक स्क्रीन आता है, इस टाइप का ही एक स्क्रीन आएगा। तो ये 4 स्टेप्स हैं, सीधा सीधा 4 स्टेप है। सबसे पहले हमको यूआरएल डालना है, उसके बाद एक कोड, एक एचटीएमएल कोड आता है, उसके अंदर एक छोटा सा सिंटेक्स रहता है, 1 लाइन का सिंटेक्स रहता है। वो हमको विक्स के अंदर ऑप्शन है कि आप अपने साइट को वेरीफाई कर सकते हैं। तो
तो आपको एज इज वो कैप्शन उठाना है और विक्स में जाके आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद आप गूगल के अंदर एक ऑप्शन आता है वेरीफाई दिस साइट, ठीक है, तो वेरीफाई करने के बाद वो सक्सेसफुल वेरिफिकेशन हो जाता है और आपका ये दिख के आ जाता है कि आप वेरीफाई कर चुके हैं। अगर आप ये विक्स पे बना रहे हैं तो, अगर आप विक्स पे नहीं बना के वर्डप्रेस पे बना रहे हैं, किसी और प्लेटफॉर्म पे बना रहे हैं, तो आपको वो कोड बॉडी के अंदर, हेड और बॉडी के अंदर आपको वो कोड पेस्ट करना होता है और उसके बाद सेव करके आप अपलोड करते हैं, फिर गूगल उसको वेरीफाई करता है। ये 4 स्टेप्स हैं, बहुत ही छोटे से स्टेप्स हैं। जब आप वेबसाइट का लिंक आप डालते हैं, प्रीफिक्स वाला जो था उसमें जब डालते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे आपको दिख के आ रहा होगा HTML कोड का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, और ये जो मेटा नेम, गूगल साइट वेरिफिकेशन और ये कोड आ रहा है, इसी कोड को कॉपी करके हमको विक्स की साइट पे डालना है। और उसके बाद नीचे आप देखिएगा कि आपको वेरीफाई का बटन आएगा, तो जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे वो आपके लिंक को फेच करता है और वो वेरीफाई करने के बाद सक्सेसफुली वेरीफाइड का एक ऑप्शन दे देता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही छोटा सा ऑप्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोई, आप लोगों में से कोई भी अगर लैपटॉप पे एक्सेस कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि मैं अपना स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूं और आप इसको करें, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कर लिया है तो मेरे पास वो चीज फिर से नहीं आएगा, ठीक है। या कोई है आप लोगों में से जो कि लैपटॉप से एक्सेस कर रहे हैं अभी? हेलो? I will connect in a minute, sir. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जब तक मैं एक और साइट है मैं उसको देख रहा हूँ, अगर वो वर्कआउट हो जाता है तो दैट विल बी बिग हेल्प। ये एक विक्स पे ही ड्यूरिंग आप कुछ जैसे ट्रेनिंग कर रहे हैं वैसे ही किसी और को करते हुए हमने एक छोटा सा एक वेबसाइट विक्स के ऊपर बनाया था। ओके, तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि हमको सर्च कंसोल में जाना है। ओके, तो हम सर्च कर लेंगे सर्च कंसोल। ओके, गूगल सर्च कंसोल ये हमारा आ गया। ये हम ओपन कर रहे हैं और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि मेरा कौन सा ईमेल आईडी यहाँ पे कनेक्टेड है। तो मेरा प्राइमरी ईमेल आईडी कनेक्टेड है, मैं जो है दूसरा ईमेल आईडी को मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। तो आप लोगों के सामने ये सर्च कंसोल का स्क्रीन दिख रहा है। इज इट विजिबल टू एवरीवन? Yes, sir. राइट। तो अब विक्स वाला जो साइट है उसको मैं यहाँ पे, विक्स के साइट का लिंक मैं यहाँ पे डालता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे एक कोड आ गया है, ठीक है, कि इसको हमको डाउनलोड करना है इस फाइल को और अपलोड करना है। बट विक्स के अंदर ये एज ए टूल हमको ऑप्शन मिल जा रहा है, तो हमको इसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। हम HTML फाइल की तरफ जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा कि भाई क्या है, राइट। तो सॉरी, HTML फाइल की तरफ हम जाएंगे, HTML टैग है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये साइट वेरिफिकेशन कोड आ रहा है, दिख के आ रहा है ना आप लोगों को? साइट वेरिफिकेशन कोड गूगल का ये आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करूंगा। ओके, मैं इसको कॉपी करूंगा और उसके बाद मैं विक्स की साइट पे जाऊंगा। तो ये विक्स का जो एडमिन है वो दिख रहा है आप लोगों को? इज इट एबल टू सी इट? ठीक है, तो ये विक्स, हाँ, विक्स के साइट में जाके हम SEO टूल पे जाएंगे, जहां पे हम लोगों ने SEO पैटर्न को फिक्स किया था, वो तो आप लोगों ने कर लिया।
जिसके अंदर टाइटल और डिस्क्रिप्शन हम लोगों को डालना था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ रहा है साइट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो साइट वेरिफिकेशन पे जाएंगे, यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल आ रहा है और आप यहाँ पे देखिए कि ये एक इंटरफेस आ रहा है जो कि हमको ये डालने का है। ये डालने के बाद हम इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद फिर से हम सर्च कंसोल पे जाएंगे, फिर से हम सर्च कंसोल पे जाएंगे और यहाँ पे हम ऑप्शन आएगा जिसको कि वेरीफाई का, तो ये आपको दिख रहा है वेरीफाई वाला बटन दिख रहा है ना आप लोगों को? Yes, sir. राइट, तो अब मैं इसको वेरीफाई पे क्लिक कर रहा हूँ, ये चेकिंग द वेरिफिकेशन, ओनरशिप वेरीफाइड। तो हमारा ये चीज जो है हमारा वेरीफाई हो गया है। अब हम इसको क्लिक करेंगे गो टू प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टी के ऑप्शन पे आ गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमको क्या करना है, हमको अपने इसमें साइट मैप को हमको अपलोड करना है। अब साइट मैप कहाँ से पता चलेगा, तो विक्स में ही अगर जब हम जाएंगे तो आप देखिएगा कि एसईओ टूल में ही आपको, सॉरी गलती से कुछ और क्लिक हो गया, यहाँ पे आप देखिए एसईओ टूल में ही आपको साइट मैप का एक ऑप्शन नजर आ रहा है, राइट। मोर और लेस अगर आप वर्डप्रेस में भी बना रहे हैं तो भी ज्यादातर ये रहता है कि sitemap.xml अपने आप सर्वर पे अपलोड हो जाता है, साइट पे क्रिएट हो जाता है। अगर नहीं हो रहा है तो आप अपने वर्डप्रेस की साइट का या किसी और फॉर्मेट की वेबसाइट का आप क्रिएट साइट मैप करके आप just 1 minute, my laptop is going low in battery, I'll just connect. ऑलराइट, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर आपका साइट मैप ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी ओपन टूल है, क्रिएट साइट मैप करके आप गूगल पे सर्च कर लीजिए और अपनी वेबसाइट यूआरएल जब आप सबमिट करिएगा तो वो साइट मैप क्रिएट कर देता है। विक्स के साथ ये है कि जो भी साइट मैप है ये यहीं पे क्रिएट हो जाता है। तो साइट मैप पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिख के आ जाएगा, राइट, व्यू साइट मैप इंडेक्स। ठीक है, तो ये आपको ओपन करना है और यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे तो आपका साइट मैप इस तरह से दिख के आ जाएगा। ये कितने तारीख है, 10/1/2022 को ये साइट मैप क्रिएट हुआ है। मैं इस साइट मैप के एक्सटेंशन को मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा और फिर से मैं जो वेरीफाई किया हूं, जो आपके सामने ये वाला स्क्रीन आ रहा है, गूगल सर्च कंसोल का जो स्क्रीन आ रहा है, मैं फिर से उसको शेयर कर देता हूं सो दैट आसानी होगी, राइट। तो ये है, यहाँ पे आपको क्या करना है, साइट मैप का जो फाइल नेम है वो आपको इंटर करना है और सबमिट करना है। यहाँ पे आप देखिएगा कि ये गॉट इट। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे साइट मैप सक्सेस दिख के आ रहा है आप लोगों को, सक्सेस। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो वेबसाइट है, एक तो साइट को हमने वेरीफाई किया, दूसरा हमने अपने साइट मैप को गूगल में सबमिट कर दिया है। अब गूगल में जब साइट मैप हम सबमिट करते हैं तो हमारा पेज ऑटोमेटिकली इंडेक्स हो जाएगा कुछ टाइम में, 24 आवर्स या 48 आवर्स में ये हमारा साइट फेच हो जाएगा और हम इसके परफॉर्मेंस को फिर हम यहाँ पे पूरे के पूरे एनालिटिक्स को हम यहाँ पे देख सकते हैं, सारा रिपोर्ट, यानी कौन से कीवर्ड से आ रहा है, किस प्लेटफॉर्म से आ रहा है, कितना आ रहा है, ये सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक दूसरा किसी प्रॉपर्टी का आपको बताता हूं जो कि पहले से एडेड था और उसमें किस तरह के रिपोर्ट्स हम देख सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज एडेड हैं। मैं एक को ओपन करता हूं,
तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितना उसके ऊपर ट्रैफिक आ रहा है, जितनी चीजें आ रही हैं, ये सारा का सारा यहाँ पे दिख के आ रहा है। अगर हम अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप साइट मैप पे जाएंगे तो साइट मैप कब सबमिट हुआ था, ठीक है। अगर फेच नहीं हुआ है तो वो भी आपको दिखा देता है, जैसे देख रहे हैं आप कि कभी फेच नहीं हुआ था वो भी आपको दिखा देता है, और अगर फेच हो गया है तो वो भी आपको दिखा देता है, राइट। तो इसी तरह से जो जहां पे अगर एरर आ जाएगा तो आपको यहाँ पे दिख के आ जाएगा कुड नॉट फेच। अब आप कवरेज में जाएंगे तो आपको जितने पेजेस आपके इंडेक्स हैं या फिर इश्यूज हैं, जो भी चीजें हैं वो आपको दिख के आ जाएगा कि यहाँ पे 9 इश्यूज दिखा रहे हैं। तो कहीं पे रीडायरेक्शन का एरर है, कहीं पे सर्वर एरर है। तो ये जितने आपकी वेबसाइट पे एरर है या पॉजिटिव है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाएगा। उसी तरह से रिमूवल्स पे जब जाएंगे तो अगर किसी लिंक को आप चाहते हैं कि गूगल के इंडेक्स से रिमूव कर जाए, तो आप रिमूवल्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद न्यू रिक्वेस्ट पे जाएंगे और उस यूआरएल को, उस लिंक को आप सबमिट करेंगे, और उसको सबमिट करने के बाद गूगल सर्च कंसोल उसको कैप्चर कर लेता है और नेक्स्ट अपडेट में आपके वेबसाइट का वो पर्टिकुलर लिंक आपके गूगल सर्च से बाहर आ जाएगा। तो ये एक ऑप्शन है कि आप कैसे किसी चीज को इंक्लूड कर सकते हैं। बट अगर आपको कोई लिंक को एक्सक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी लिंक को इंक्लूड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे एक्सक्लूड का ऑप्शन है, जैसे साइट मैप का ऑप्शन है, उसी तरह से यहाँ पे आप अपने लिंक को इंक्लूड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि जो भी आपके वेबसाइट्स हैं या एक्सटेंशंस हैं, ठीक है, मोबाइल पे कैसा दिखेगा, कौन कौन से लिंक्स इसके प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, तो आपको ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख के आ जाएंगी कि कौन सी चीज कितना है, उस पर कितना इंप्रेशंस आए हैं, कितने क्लिक्स आए हैं, सारी चीजें आपको निकल के आ जाएंगी, किस अलग अलग वेबसाइट से आया है, ठीक है। और आपको कीवर्ड्स के बारे में भी आइडिया यहाँ से लग जाएगा कि कौन सा कीवर्ड आपकी वेबसाइट पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप परफॉर्मेंस पे जाके देखेंगे, आपको सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो एक तरह से ये देखिए कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको टॉप क्वेरीज हैं जिसके अंदर कीवर्ड्स के नाम आपको पता चल जाएंगे कि कौन कौन सा कीवर्ड आपकी वेबसाइट पे आप कौन कौन से कीवर्ड्स गूगल में सर्च होने के बाद लोग आपकी वेबसाइट पे पहुंच रहे हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे आप राइट साइड में देखेंगे तो ये क्लिक्स पता चलता है, इंप्रेशंस पता चलता है। आप यहाँ पे अगर फिल्टर रो आप करें तो आप जो है टॉप क्वेरीज, क्लिक्स, इंप्रेशंस, ये सारी चीजें तो है ही हैं, बट साथ में अगर किसी और चीज को अगर आपको इंक्लूड करना है, फॉर एग्जाम्पल एवरेज पोजिशन, कि वो पर्टिकुलर कीवर्ड गूगल में कहाँ पे रैंक कर रहा है, तो यहाँ पे आपको पोजीशन का भी लिंक आ जाता है और आप इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप कर सकते हैं, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कौन सा कीवर्ड टॉप परफॉर्म कर रहा है, कौन सा कीवर्ड टॉप परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि जैसे 2.4, 2.3, 2.5 का क्या मतलब है। मतलब ये है कि एवरेजली ये आउट ऑफ 100 नॉर्मली थर्ड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे या फर्स्ट पोजीशन पे, जहाँ पे भी अलग अलग जगहों पे रैंक करता है, फिर उसको एवरेज लेके ये करते हैं। बट मोर और लेस 4.9 है तो ऑलमोस्ट 5 के करीब है, 3.9 है 4 के करीब है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप कितने, कौन से कीवर्ड आपका किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो एक तरह से सर्च कंसोल एक इंटीग्रल पार्ट है जो कि हमें अपनी वेबसाइट पे इंक्लूड करना पड़ता है, और इंक्लूड करने के बाद हमको ये पूरा का पूरा डिटेल दे देता है कि भाई कौन सी कीवर्ड कहाँ पे गूगल में परफॉर्म कर रहा है। और इसके बेसिस पे आप अपने पेज के टैग्स को, पेज के कंटेंट को, वो सारी चीजों को आप अपडेट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखिएगा जो यूआरएल इंस्पेक्शन है, यहाँ पे आपको बहुत सारे और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं जहाँ पे आप अपने जो है किसी भी लिंक को आप इंस्पेक्ट करना चाहते हैं कि भाई उसका क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, दैट ऑल्सो यू कैन एक्चुअली डू इट। उसी तरह से कवरेज का मैंने आपको बताया, साइट मैप का बताया, रिमूवल के लिए बताया। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक मोबाइल यूजेबिलिटी भी अगर आप देखना चाहें तो उसके अंदर आपको दिखा देता है कि अगर मोबाइल व्यू में कोई एरर आ रहा है, इन द सेंस बैनर इधर से उधर जा रहा है, विजिबिलिटी सही नहीं है, तो वो भी आपको यहाँ पे दिख के आ जाता है कि मोबाइल का व्यू कैसा आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई एरर नहीं दिखा रहा है, सो दैट मीन टू से
इट इज ओके, ठीक है। प्रोडक्ट्स पे भी जाके आप देख सकते हैं कि कितने प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं, ओके, बिकॉज ये ग्रीनटो एक ई कॉमर्स साइट है, तो यहाँ पे ये है। अब बहुत सारे, ये एक लंबी वेबसाइट है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पास्ड है, नॉट स्टार्टेड है, नॉट स्टार्टेड है, तो ये सारी चीजें एरर के फॉर्मेट में है, और क्लाइंट को ये चाहिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अब अभी हमारे पास नहीं है, तो क्लाइंट को नॉर्मली ये चाहिए कि इन चीजों को सर्च कंसोल को थोड़ा ध्यान में देते हुए, बिकॉज रियल टाइम सिनेरियो के अंदर जो भी एरर आता है वो यहाँ पे दिख के आ जाता है। मैनुअली एक्शन अगर कोई चीज लेना है, ठीक है, तो आप वो चीज भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई एरर आता है तो आप उसको भी फिक्स कर सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि गूगल एरर शो करता है, लेकिन आप रीसबमिट कर रहे हैं, तो आप उस चीज को जैसे एक पेज है, गूगल ने कहा कि उसके अंदर एरर है, आपने एरर फिक्स किया और फिर से आप उस पेज को रीसबमिट करना चाहते हैं, तो वो आपको यहाँ पे वो चीज आ जाएगा, राइट। तो ये एक बहुत ही लंबा चौड़ा एक सेक्शन है, बट मोर और लेस ये है कि हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हम इस चीज को करने के बाद हमारी वेबसाइट इंडेक्स होनी शुरू हो जाती है, और हमारी वेबसाइट का गूगल के अंदर इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, इन द सेंस गूगल हमारी वेबसाइट को फेच करना शुरू कर देती है, ओके। उसी तरह से जब आप सेटिंग्स पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें आएंगी, यानी यू आर नॉट ए वेरीफाइड ऑनर, ठीक है, तो कौन है वेरीफाइड ऑनर वो देखा जा सकता है, ठीक है। तो जिसने भी वेरीफाई किया है इस साइट को उसका दिखाएगा, तो हमने वेरीफाई नहीं किया है किसी और, यानी हमको सिर्फ एक्सेस मिला है इसका, इसीलिए इट इज शोइंग दैट आई एम नॉट ए वेरीफाइड ऑनर, ओके। अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो आपके केस के अंदर यहाँ पे आप यू आर ए वेरीफाइड ऑनर करके आपको दिख के आ जाएगा, ओके। उसी तरह से कोई एड्रेस या एनालिटिक्स कोड आपको ओपन करना है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देख सकते हैं। क्राउल स्टेटस 516,000 क्राउल रिक्वेस्ट इन लास्ट 90 डेज। आप रिपोर्ट ओपन कर सकते हैं तो आपको दिख के आ जाएगा कि कितने लिंक्स आपकी वेबसाइट का इंडेक्स किया जा चुका है, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट के पेजेस आप डिलीट कर चुके हैं वो भी आप यहाँ पे उन वेबसाइट के पेजेस को आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आप लोगों को और हम लोगों को इसके साथ प्ले करना चाहिए, और वंस वी डू इट प्रोबेबली वी विल बी एबल टू फेच आर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द पेजेस, और जो भी हमारी वेबसाइट पे पेजेस हैं उसको हम फेच कर सकते हैं, और फिर हम देख सकते हैं कि भाई वो कहाँ पे अभी परफॉर्म कर रहा है। तो जैसे आप लोगों के सामने मैंने एक पेज को ये किया है, उसी तरह से ये वाला पेज है जो कि मैं कल इसको ये किया हूँ, इनकॉर्पोरेट किया हूँ। तो अभी इसका पूरा का पूरा फेचिंग और वो सारी चीजें नहीं आई हैं, बट ये है कि इट इज बीइंग वेरीफाइड, थिंग्स आर देयर, साइट मैप सबमिट हो चुका है जो कि आप देखेंगे कि यहाँ पे सक्सेस हो चुका है, ठीक है। कवरेज इट मे स्टार्ट आफ्टर सम टाइम, ठीक है। बट एनालिटिक्स के फॉर्मेट में अगर हम जाएं तो विक्स के अंदर अपने आप एक ऑप्शन है कि विक्स एनालिटिक्स का, कि अगर आपके पेज पे कोई आता है तो ऑटोमेटिकली आपको, जब आप विक्स में लॉग्ड इन रहते हैं तो आपको एक ट्रिगर होता है समवन विजिटेड योर वेबसाइट, ठीक है। तो वो ट्रिगर हो जाता है, तो विक्स के अंदर एनालिटिक्स डिफॉल्ट इंक्लूडेड है, वेयर एज दूसरे प्लेटफॉर्म पे जैसे मैंने आपको बताया सर्च कंसोल का, इसी तरह से आप प्रोसीड करके अपनी वेबसाइट को गूगल के अंदर फेच करा सकते हैं। ओवर टू यू गाइज, इन केस अगर आप में से कोई अगर अभी करना चाहे तो कर सकता है, हम लोग देख सकते हैं, जबकि मैंने आप लोगों को बता दिया है। बट फिर भी अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहता है अभी तो हम देख सकते हैं, और यही चीज आप सबको अपनी वेबसाइट के लिए करना है। नंबर 1, मैं ये डॉक्यूमेंट भी आप लोगों को शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। सो नंबर 1, आपको गूगल सर्च कंसोल गूगल में सर्च करना है। नंबर 2, वहाँ पे आप लॉग इन करेंगे अपने ईमेल आईडी से। फिर उसके बाद जैसे ही सर्च कंसोल पे जाएंगे तो आपको डोमेन और प्रीफिक्स करके आता है, तो प्रीफिक्स वाले ऑप्शन में राइट साइड के ऑप्शन में आप अपना वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे, नेक्स्ट क्लिक करेंगे और HTML कोड की तरफ जाके वहां से आप वेरिफिकेशन कोड आप पिक करके अपनी विक्स की साइट पे जहाँ पे SEO टूल्स आता है वहां पे आप वेरीफाई साइट के ऑप्शन में जाके आप उस कोड को 1 लाइनर स्ट्रिंग को आप वहां पोस्ट करेंगे, सबमिट करेंगे। उसके बाद फिर से आप सर्च कंसोल पे जाएंगे, वहां पे वेरिफिकेशन का बटन है, वेरीफाई का बटन है, वो आप क्लिक करेंगे।
आपकी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाती है। अब आप फिर से वहां पे दो ऑप्शंस आते हैं, गो टू सर्च कंसोल इंटरफेस। तो कंसोल गो टू प्रॉपर्टी पे आप क्लिक करके कंसोल में चले जाएंगे और विक्स की साइट पर से साइट मैप क्रिएट करके साइट मैप डॉट एक्सएमएल आएगा, ज्यादातर सबका साइट मैप डॉट एक्सएमएल ही आएगा। उस साइट मैप डॉट एक्सएमएल को आप ले जाके गूगल सर्च कंसोल में आप सबमिट करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। अगर आपकी प्रॉपर्टी सबमिट हो गई तो सक्सेस दिखाएगा, नहीं सबमिट हुई तो एरर दिखाता है। अगर एरर दिखा रहा है तो आप इस प्रोसेस को फिर से करें, वेरीफाई पे जाके फिर से आप साइट मैप का लिंक आप सबमिट करें सर्च कंसोल में और सबमिट कर दें, वो वेरीफाई कर लेगा। एक बार वेरीफाई कर लेता है तो गूगल एक 48 आवर्स का टाइम लेता है आपकी वेबसाइट को और हमारी वेबसाइट को फेच करने का। तो फिर हम 48 आवर्स के बाद हम फिर से सर्च कंसोल में जाके देख सकते हैं कि वहां पे क्या मतलब इंडेक्सिंग है या नहीं है। या फिर उसके टेस्ट करने के लिए आप अपने यूआरएल को गूगल में जाके आप सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के लिए फॉर एग्जांपल अगर हमारी वेबसाइट है जो भी हमारी वेबसाइट है, हम उस वेबसाइट को ये वाला है डिजिटल कंसल्टिंग। फॉर एग्जांपल ये हमारी साइट है और हमको ये देखना है कि हमारी साइट गूगल में फेच हुई है या नहीं हुई है, गूगल ने इसको इंडेक्स किया है नहीं किया है। तो उसका सबसे आसान तरीका आप लोगों को सबको पता होगा, google.com पे जाएंगे और हम सर्च बार के अंदर इस चीज़ को सर्च करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी ये नहीं इंडेक्स है, ठीक है। तो हम फिर से इसको विजिट कर सकते हैं और क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये हमारी साइट इंडेक्स हुई है या नहीं हुई है। तो जब आपकी साइट इंडेक्स हो जाएगी तो यहाँ पे आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ लिंक आ जाएगा, दैट इज व्हाट इट इज रिक्वायर्ड। सो अगर आपके एक पेज है तो एक पेज इंडेक्स हो जाएगा, मल्टीपल पेजेस हैं तो मल्टीपल पेजेस आपके इंडेक्स हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस है विच आई वॉज मिसिंग while reviewing the topics that I have covered। उसके अंदर जब मैं ये देखा तो मुझे ये महसूस हुआ कि I missed this topic, so I thought that let me take it up। इसके अलावा अगर आप लोगों को और कोई कंफ्यूजन और कोई क्लैरिफिकेशन या और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये आज जो मैंने आप लोगों को सर्च कंसोल वेरिफिकेशन का बताया, बहुत ही छोटा सा स्टेप है बट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया ये चीज या फिर से मैं बताऊं? Clear, sir. क्लियर है, ठीक है, ओके। तो किसी के पास लैपटॉप है तो अगर वो शुरू कर सकते हो तो वो भी कर लीजिए, या मोबाइल पे भी शायद सर्च कंसोल काम करेगा, बट मोबाइल का मैंने ट्राई नहीं किया है। मोबाइल गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वो चीज़ नहीं किया है। बट हाँ, एनालिटिक्स तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाता है, तो जहाँ पे हम लोग मॉनिटर करते रहते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। उसके बाद मेरे ख्याल से मोर और लेस मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स वी आर डन। एक बार हम रिकैप कर लेंगे इस चीज को एंड देन वी विल बी मोर और लेस विल बी डन विद दिस सिलेबस। असलम, सैफ, सलवा, शहरियार, एनी क्वेश्चंस? हबीबा? Sir, what is the next topic after email marketing? नेक्स्ट टॉपिक जैसे मैंने अभी एक ये सर्च कंसोल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मिस हो गया था वो मैंने आप लोगों को बताया है। उसके बाद मोर और लेस तो व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द टॉपिक व्हाट हैज बीन कवर्ड, सो आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक। सो अगर आप लोगों के जहन में कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो तो बताइए, बट मोर और लेस आई हैव कवर्ड इट। एक
यूट्यूब चैनल के ऊपर एनालिटिक्स का है, तो यूट्यूब चैनल क्रिएट करना एक टॉपिक अगर हम कवर करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं, बट नॉट ए बिग डील, दैट इज क्वाइट सिंपल। उसके अलावा तो एज सच कोई खास चीज़ नहीं है। कीवर्ड रिसर्च टूल भी हम लोग कर चुके हैं, मेटा टैग्स कैसे बनाना है, टाइटल डिस्क्रिप्शन एक्सेल शीट का वो आप लोगों को बता ही चुका था मैं। सो right from creating banners to creating our website on Wix, then followed by social media के paid campaigns, सारे platforms के हम लोगों ने देखे। SEO का ऑन पेज जो फैक्टर है, टाइटल डिस्क्रिप्शन बनाना, वो भी हम लोगों ने देखा है। ऑफ और जो टेक्निकल है वो पार्ट आज हम लोगों ने किया है कि गूगल साइट वेरिफिकेशन करना है, फिर उसका एनालिटिक्स को हम लोगों को इनकॉर्पोरेट करना है। सो ऑल दोज थिंग्स हैज बीन कवर्ड. So more or less email marketing has been covered as well. So more or less we are done with almost all topics. So let me know in case you want anything specific to be heard or me to discuss anything specific, I'll take it. No doubt, sir, from my side. Okay. Anyone else? Not a problem, guys. So we'll put an off today. Then I will also fair enough, Shahryar. आप लोग भी थोड़ा सा देख लीजिए in case you feel something really important to be covered apart from whatever I have covered. तो आप लोग देख लीजिए and then we'll come back. So कल हम लोग फिर मिलेंगे सुबह 8:30 बजे। जो भी डाउट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं वो मैं भी क्रॉस वेरीफाई कर लूँगा कि ये चीज़ है, बट 2 चीज़ें आप लोगों को करनी है। पॉइंट नंबर 1, जो ईमेल मार्केटिंग का जो है वो आप लोग सारे के सारे इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लीजिए। पॉइंट नंबर 2, ये साइट वेरिफिकेशन को भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। मैं अभी थोड़ी देर से आपको ये वीडियो भेज देता हूँ, और ये डॉक्यूमेंट भी ग्रुप में ही शेयर कर देता हूँ। और उसके बाद अगर कोई टॉपिक जो बचा हुआ रह जाता है, तो अगर दिन में आप लोगों को पता समझ में आता है या कोई ऐड करना चाहते हैं तो ग्रुप पे ही डाल दीजिए, सो दैट आई विल प्रिपेयर माई सेल्फ एंड कम बैक टू यू। शहरयार, यू आर सेइंग करिकुलम। सो करिकुलम में तो वही सारी चीज़ें हैं जो कि अभी तक हम लोगों ने कवर किया है। सो व्हाट एक्स्ट्रा यू वांट टू नो? अगर आप चाहते हैं कि जो भी मैंने कवर किया है उसको मैं डॉक्यूमेंट करके आपको भेज दूं तो मैं डॉक्यूमेंट करके आपको भेज दूंगा, बट मोर और लेस जो चीज़ें अभी मैंने आपको रिकैप करते हुए बताया कि वी स्टार्टेड विद क्रिएशन ऑफ बैनर्स फ्रॉम कैनवा, देन फॉलोड बाय सोशल बैनर्स, देन फॉलोड बाय लैंडिंग पेज ऑन विक्स, फिर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग को हम लोगों ने कवर किया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सारी चीज़ें कवर किया। फिर आपने पेज बनाया, विक्स के ऊपर साइट बनाई, उसका ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन किया, जहाँ कीवर्ड रिसर्च करके टाइटल डिस्क्रिप्शन बनाया, उसको हमने एसईओ कंपोनेंट्स के अंदर इंकॉर्पोरेट किया, विच इज़ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। आज जो मैं बताया आपको वो टेक्निकल एसईओ का पार्ट है, तो ये दोनों चीज़ें एसईओ को केटर करती हैं। उसके बाद हम लोगों ने गूगल पेड ऐड को हमने देखा, जहाँ टेक्स्ट ऐड भी देखा, कॉल कैंपेन भी देखा, वीडियो ऐड भी देखा, तो गूगल एड्स भी हम लोगों ने कवर किया। उसके बाद हमने मेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग कवर किया। तो यही करिकुलम है। इसके अलावा अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं शहरयार, या फिर मैं इसी चीज़ को वर्ड डॉक्यूमेंट बना के आपको शेयर कर देता हूँ। या शहरयार, एनीथिंग? Okay, I'll create and share it then. All right, guys. We have covered it. Will be helpful. Okay, fair enough. So I'll do that, and then let's catch up tomorrow again. All right, guys. Have a great day. Take care.